10 محرم کربلا 61 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے، تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا، اور پھر کیسے کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط لکھے، اور پھر کیسے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور پھر کیسے 10 محرم میں اہل بیت کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے۔ وہ ایک بچے تھے جو کہ بخار میں مبتلا تھے، اور وہ عورتوں کے خیمے میں تھے، اس لیے وہ بچ گئے، اور پھر شمع نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور ابن زیاد کو پیش کیا، اور ابن زیاد نے پھر کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کی کلاس میں۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم یہ سارا قصہ دیکھیں گے کہ حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان تمام واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ پوری کلاس میں ہم 10 محرم تک کی پوری ہسٹری جانیں گے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے واقعات پیش آئے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو پاکستانی ٹائم رات 9 بجے اینڈ ہیوسٹن ٹائم صبح 11 بجے، اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجیں گے۔ ڈو ناٹ مس دس کلاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمارے لیے نافع بنا دینا، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں، آمین ثم آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے دیکھو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہوتی ہے تو یہ تو سوچ ہی لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ادا کرو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا، آنیسٹلی اتنا اثر ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو انسان میں وہ خشیت آ ہی جاتی ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں آپ اپنے آپ کو پہلے سے اس سینٹنس کے لیے تیار رکھیں اور اپنے آپ سے یہ کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری نماز آج آخری نماز ہو سکتا ہے یہ جو میں عبادت کر رہی ہوں یہ میری آخری عبادت ہو۔ موت کے وقت تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جائے ہم سجدہ ہی نہ کر سکے اس طرح سے،
से, या हम उस तरह की नमाज ना पढ़ सके तो हर नमाज को इस तरह से अदा करें कि ये मेरी जिंदगी की शायद आखिरी नमाज है, शायद आखिरी सजदा है, शायद आखिरी क़याम है। तो आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इसमें जरूर मदद करेंगे। और अब शुरू करते हैं 27 पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ौला फमा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, के इस इब्राहिम ने कहा तो क्या है तुम्हारा असल काम ए भेजे हुए फरिश्तों। हम लास्ट पारा से पढ़ रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे फरिश्ते जब आते हैं तो आके उनको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं। तो उसके साथ ही उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब आना था उसके बारे में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं कौम की तरफ जो मुजरिम है, ताकि बरसाएं उन पर पत्थरियां गारे की, निशान ज़दा तेरे रब की तरफ से हद से बढ़ जाने वालों के लिए। बस निकाल लिया हमने जो था इस बस्ती में अहले ईमान में से। देखिए कि हम हर दफा जब पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब जहाँ पे नजर आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस जगह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को बचा के निकाल देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते फिर ना पाया हमने इस बस्ती में सिवाय एक घर के कोई मुसलमानों का घराना, और बाकी छोड़ दी हमने वहां निशानी उन लोगों के लिए जो डरते हैं अजाब अलीम से। और मूसा के वाकये में भी जब भेजा हमने उसको फिरौन की तरफ खुले हुए मुआवजे के साथ। और आयत नंबर 39, तो मुंह मोड़ लिया उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर और कहने लगा कि ये तो जादूगर है या दीवाना है। तो पकड़ लिया हमने उसको और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया उनको समंदर में और वो मलामत सदा होकर रह गए। और आपके वाकये में भी जब भेजी हमने उस पर एक नामुबारक आंधी, ना छोड़ती थी वो किसी चीज को, चलती थी वो जिस पर मगर ये कि डालती थी उसको जैसे कि रेजा रेजा कर दिया। और आयत नंबर 43, और समूद के वाकये में जब कहा गया उनसे कि फायदा उठा लो एक वक्त तक, बस उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म की, सो आ पकड़ा उनको कड़क ने और वो देख रहे थे। फिर ना ताकत रखते थे खड़े रहने की और ना बचाव कर सकते थे। और नूह की कौम को उससे पहले हम हलाक कर चुके थे, बेशक वो लोग थे नाफरमान। और आसमान बनाया हमने उसको अपनी कुदरत से, और यकीनन हम हर तरह की वसअत रखते हैं। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जमीन बिछाया हमने इसको तो क्या खूब हम बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने पैदा किए दो जोड़े ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और आयत नंबर 50, तो दौड़ चलो तुम अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुमको उसकी तरफ से खबरदार करने वाला हूँ खुले तौर पर। और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद दूसरे, बेशक मैं तुमको इसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुले तौर पर। इसी तरह नहीं आया उन लोगों के पास उनसे पहले कोई रसूल मगर उन्होंने कहा कि ये जादूगर या दीवाना है। अब देखिए ये सारे वाकयात अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें क्यों बता रहे हैं कि जैसे हमारे ज़हन में ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों पे ऐसे नहीं कर सकते। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करता है और वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब का शिकार होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 53 में, क्या उन्होंने आपस में वसीयत की है इस बात की, नहीं बल्कि ये लोग ही सरकश हैं। तो मोड़ लो अपना रुख उनसे, सो नहीं तुमको कोई मलामत। और आयत नंबर 55, और नसीहत करते रहो, बस यकीनन नसीहत नफा देती है मोमिनों को। और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अब अपना मकसद समझ आ गई है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फरमाया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करें। नहीं चाहता मैं उनसे कोई रिस्क और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, जोर आवर है और मजबूत है। सो बेशक उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया अजाब मुकर्रर है, जैसा अजाब हुआ उनके साथियों को, तो नहीं उनको मुझसे जल्दी करनी चाहिए। तो खराब भी है उनके लिए जिन्होंने कुफर किया। और अब इस सूरह की आखिरी आया और उनके इस दिन में जिसका उनसे वादा किया गया है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो तूर, कसम है तूर की और किताब की जो लिखी हुई है, और घर की जो आबाद है, और छत की जो ऊंची है, और समंदर की जो जोश मारे, बेशक अजाब तेरे रब का वाक़ई होने वाला है, नहीं है इससे कोई रोकने वाला।
اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن لرزنے لگے آسمان کپ کپا کر اور چلنے لگے پہاڑ ایک خاص چلنا، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن دھکیلے جائیں گے آگ کی طرف جہنم دھکے دے کر، یہی آگ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 15، تو کیا جادو ہے یہ، یا تمہیں نہیں کچھ نظر ہی آتا؟ داخل ہو جو اس میں اور پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، بس برابر ہے تمہارے لیے، پس بدلہ مل رہا ہے تم کو اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ دیکھیں بار بار ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو اتنی چھوٹی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے مقابلے میں ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے، تو بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اتنے 80 90 100 سال جن کو ملتے ہیں، کتنی لمبی لمبی زندگیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ مقابلہ کر کے دیکھیں اس زندگی سے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں قیامت کا ایک ایک دن 50,000 سال سے بڑا ہوگا، اس کے مطابق تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً متقی ہوں گے باغوں میں نعمتوں والی، خوشحال ہوں گے اس پر جو بخشا ان کو ان کے رب نے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ یہ تھوڑی سی زندگی میں جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ ان کے قبول ہو جائے، اور بچا لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دوزخ سے۔ کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے سلے میں جو تم کرتے تھے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر کتار در کتار، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے۔ اور آیت نمبر 21 بہت خوبصورت آیا ہے اور بڑی تسلی والی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں پہ بہت وقت لگاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے بچے اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اتباع کی ان کی اولاد نے راہ ایمان میں، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہ کم کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، ہر فرد اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ اولاد اگر جنت کے اندر آ جاتی ہے، درجات کی ڈفرینٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ فار ایگزامپل اوپر بڑے درجے میں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ سے ان کی اولاد کو اوپر والے درجے میں لے جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو دوسری بات کی کہ ہر فرد اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ اب دیکھیے جب کسی کے پاس رہن کوئی چیز رکھتے ہیں، امانت کے طور پہ رکھتے ہیں نا، کہ جب ہم نے جو چیز ادھار لی ہے وہ ہم واپس کریں گے تو ہم اپنی چیز رکھی ہوئی واپس لے لیں گے۔ تو ہمارے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، نیکی لے کے جب جائیں گے تو ہم اپنے نفس کو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھڑائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، اور عطا کر دیں گے ہم ان کو لذیذ پھل اور گوشت جس طرح کے وہ چاہیں گے۔ اور آیت نمبر 23، چھینا جھپٹی کریں گے وہ وہاں جام شراب کی، نہ کوئی لغو بات ہوگی جس سے، اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا، اور پھریں گے ان کے آس پاس ان کے نوجوان خدمتگار ایسے جیسے کہ موتی چھپائے ہوئے، اور متوجہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی طرف آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، کہیں گے کہ ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے۔ دیکھیے یہاں پہ نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، جیسے آج کل ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ رہتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ موج مستی میں اپنی زندگی گزارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو وہی آزمائش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور انہی اولاد اور مال کی خاطر اپنے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو احسان فرمایا اللہ نے ہم پر اور ہمیں بچا لیا عذاب سے دوزخ کی گرم ہوا کے۔ یقیناً ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو تم نصیحت کرتے رہو، سو نہیں ہو تم فضل سے اپنے رب کے کاہن اور نہ ہی دیوانے۔ اور آیت نمبر 30، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے زمانے کی گردش کا؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا سکھاتی ہیں ان کو ان کی عقلیں یہی، یا یہ
लोग ही सरकश हैं? क्या ये कहते हैं कि घर लिया है इस कुरान को उसने? बात ये है कि नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 24, तो उन्हें चाहिए कि बना लाएं कलाम इससे ऐसा अगर ये सच्चे हैं। क्या ये पैदा हो गए हैं बगैर किसी के पैदा किए, या ये खुद अपने खालिक है? क्या उन्होंने पैदा किया आसमान और जमीन को? बल्कि नहीं, ये यकीन ही नहीं रखते हैं। क्या उनके पास खजाने हैं तेरे रब के? क्या ये कहीं के दरोगा है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है तो बातें सुनकर आते हैं जिन पर चढ़कर? तो लेकर आए जो सुनकर आता है उनमें से कोई सनद खुली हुई। क्या इसके लिए हैं बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या मांगते हो तुम उनसे कोई मुआवजा कि वो उसके तावान में दबे जाते हैं? क्या उनके पास गायब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? तो क्या ये करना चाहते हैं कोई दाव? तो वो जिन्होंने कुफर किया वो खुद अपने दाव में आने वाले हैं। क्या उनका कोई माबूद है सवाए अल्लाह के? पाक है अल्लाह इससे जिससे वो शिर्क करते हैं। और अगर ये देख लें कोई टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ तो कहेंगे कि बादल है, उमड़ आया है। तो छोड़ दो उनको यहाँ तक कि जा मिले अपने इस दिन से जिसमें ये होश खो बैठेंगे। जिस दिन ना काम आएगी उनको उनकी कोई दाव कुछ भी, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और आयत नंबर 47, और यकीनन उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म किया अजाब उसके सिवा, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते हैं। और सब्र किए रहो तुम हुक्म का अपने रब के, यकीनन तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और पाकी बयान करो हम के साथ अपने रब की जब उठा करो। और आयत नंबर 49 जो इस सूरह की आखिरी आया है, और रात में भी फिर तस्बीह किया करो उसकी, और उस वक्त भी जब पलटते हैं सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अन-नज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब गायब होने लगे, ना भटका है तुम्हारा रफीक और ना रास्ते से बहता, और ना बोलता है ये कुछ ख्वाहिशे नफ्स से, नहीं ये मगर एक वही जो भेजी जाती है। सिखाया है उसको निहायत कुव्वत वाले ने जो साहिब हिकमत है। फिर सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो था किनारे पर सबसे बुलंद, तो वो करीब हुआ फिर मजीद नीचे आया, तो वो हो गया फासले पर 2 कमान के या इससे भी कम। फिर वही की उसने अपने बंदे की तरफ जो वही की, न झूठ जाना दिल ने जो कुछ उसने देखा। क्या झगड़ते हो तुम इससे इस पर जो वो देखता है? और बेशक उसने देखा उतरते एक और बार करीब ही सिदरतुल मुंतहा के, इसी के पास है बहिश्त हमेशा रहने की, जबकि छा रहा था उस बेरी पर जो छा रहा था। ना तो माइल हुई आंख और ना हद से आगे बढ़ी, यकीनन उसने देखी निशानियां अपने रब की बड़ी। तो क्या देखा तुमने लात और रोजा को और मनात और तीसरी एक और को? क्या तुम्हारे लिए हैं बेटे और उसके लिए हैं बेटियां? ये तो फिर हुई तकसीम बड़ी बेइंसाफी की। और आयत नंबर 23, नहीं ये तो मगर नाम है जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद, नहीं पैरवी करते हैं ये मगर महज गुमान की और वो जो ख्वाहिशात हैं उनके नफ्स की। और यकीनन आ चुकी है उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत। क्या इंसान के लिए है वो जिसकी वो आरज़ू करता है? सो अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमान में, नहीं फायदा देती जिनको सिफारिश कुछ भी, मगर इसके बाद की इजाजत बख्शे अल्लाह जिसे चाहे और जिसे वो पसंद करे। बिलाशुबा वो लोग नहीं जो ईमान लाते आखिरत पर, तो मासूम करते हैं फरिश्तों को लड़कियों के नाम से, हालांकि नहीं उनको इसकी कुछ भी खबर, नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और बिलाशुबा गुमान नहीं काम आता हक के मुकाबले में कुछ भी। तो मुंह फेर लो इससे जो रूगरदानी करे हमारी याद से, और नहीं चाहते वो मगर दुनिया की जिंदगी। यही इंतहा है उनके इल्म की, यकीनन तुम्हारा रब ही खूब जानता है उसको जो भटक गया है उसके रास्ते से, और खूब जानता है उसको जो रास्ते पर चलने वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि बदला दे उनको जिन्होंने बुरे काम किए उनके अमाल का, और बदला दे उनको जिन्होंने नेकियां की अच्छे अजर का। और आयत नंबर 22 बहुत खूबसूरत आया है, गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, सवाए इसके कि सगीरा गुनाह, बेशक तेरा रब है वुसअत मग़फ़िरत वाला, वो खूब जानता है तुमको। जब उसने पैदा किया तुमको जमीन से और जब तुम पोशीदा थे पेटों में अपनी माँ के, तो ना जताओ पाक साफ अपने आप को, वो खूब वाकिफ
तकलीफ है, इससे जो मुत्तकी है तो क्या देखा तुमने उसको जिसने मुंह फेर लिया और दिया थोड़ा सा और फिर हाथ रोक लिया, क्या उसके पास है इल्म गायब का कि वो देखता है? क्या नहीं खबर पहुंची उसकी जो सहीफों में है मूसा के और इब्राहिम की, जिसने हक अदा किया और ना उठाएगा बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का, और ये कि नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो मेहनत करता है। कि इंसान जिस काम की तरफ मेहनत लगाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वो दे देते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो दुनिया मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भर भर दुनिया दे देते हैं, और अगर वो आखिरत मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आखिरत अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारी मखलूक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कर दे, ये सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ इंसान तू जो अमल करता है वो तू अपने लिए करता है। आयत नंबर 41, तो फिर दिया जाएगा उसको बदला पूरे का पूरा, और ये कि तेरे रब ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसता और रुलाता है, और ये कि वही है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। और आयत नंबर 45, और ये कि वही तो है जो पैदा करता है दोनों जोड़े नर और मादा नुत्फे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि उसी के जिम्मे है उठा खड़ा करना दोबारा, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और मुफलिस करता है, और ये कि वही रब है शोरा सितारे का, और ये कि उसी ने हलाक कर डाला आदे अव्वल को और समूद को और ना छोड़ा बाकी, और कौम नूह को उनसे पहले, और बेशक वो थे ही बड़े जालिम और बड़े सरकश। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उल्टी हुई बस्तियों को उसने दे पटका, फिर उस पर छा गया जो कुछ छा गया, तो कौन सी नेमतों में अपने रब की तू शक करता है। ये पैगंबर खबरदार करने वाले हैं, खबरदार करने वालों में से पहले के। करीब आ पहुंची आने वाली क़यामत, नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के कोई दूर करने वाला। बस क्या उस कलाम पर तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और नहीं रोते हो, और तुम गफलत में पड़े हुए हो। और आयत नंबर 62 जो सूरह की आखिरी आया है और आयत सजदा भी है, तो सजदा करो अल्लाह के आगे और इबादत करो उसकी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गई सात और फट गया चांद, और अगर वो देखते हैं निशानी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है, और उन्होंने झुटलाया, पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की, और हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, और यकीनन पहुंच चुकी है उनको ऐसी खबरें जिनमें है समाने इबरत। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हिकमत कामिल भी, मगर ना हुआ उनको कुछ फायदा डराने का, बस रुख फेर लो उनसे। जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला एक चीज की तरफ जो नागवार होगी, सहमी हुई होंगी उनकी आंखें, निकल पड़ेंगे कब्रों से गोया कि वो होंगी टिड्डियां बिखरी हुई, दौड़ते जाएंगे बुलाने वालों की तरफ, कहेंगे काफिर ये दिन तो बड़ा ही सख्त है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि तकजीब की थी इससे पहले नूह की कौम ने, तो झुटलाया उन्होंने हमारे बंदे को और कहा कि ये दीवाना है, और उसे झिड़क दिया गया। तो उसने पुकारा अपने रब को कि मैं मखलूक हो चुका हूँ, बस तू ही मेरा इंतकाम ले। बस खोल दिए हमने धाने आसमान के मूसलाधार बारिश के लिए, और जारी कर दिए हमने जमीन में चश्मे, तो जमा हो गया पानी एक काम पर जो मुकद्दर हो चुका था, और सवार कर लिया हमने उसको उस कश्ती पर जो कि थी तख्तियों वाली और मेखों वाली, वो चलती थी हमारी आंखों के सामने। ये बदला था उसकी खातिर जिसकी नकदरी की गई थी, और बेशक बना छोड़ा हमने इस कश्ती को एक निशानी, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए। अब देखिएगा कि हम बार बार ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने ये कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया है तो नसीहत लेने वाला। लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि शैतान हमें बार बार ये बात समझाता है कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये तुम्हें समझ नहीं आनी। देखो तुम बस नाज़रा कुरान पढ़ते जाओ, उसको ये पता है कि जब हम नाज़रा कुरान पढ़ेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगी तो हमारे अमल में ही नहीं ढलेगा। कुरान नाजिल होने का मकसद क्या था कि हमारा लाहिया अमल था,
کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسی قرآن کو ہم نے بالکل ایسے ہدایت کی کتاب کی جگہ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا. ہم نے اس کو غلافوں میں پیارے پیارے خوبصورت غلافوں میں اونچی اونچی جگہوں پہ سجا کے رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہماری زندگی میں کھل جائے. آمین ثم آمین. اور آیت نمبر 17، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تکذیب کی تھی عاد نے، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. بلا شبہ بھیج دی ہم نے اس پر سخت طوفانی ہوا، ایسے نحوست کے دن جو چلتی ہی گئی. اور آیت نمبر 20، اور اکھیڑ ڈالتی تھی لوگوں کو اس طرح جیسے وہ تنے تھے کھجوروں کے جڑوں سے اکھاڑ کر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور آیت نمبر 22، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ آدمی جو ہم میں سے ایک ہے ہم پیروی کریں اس کی؟ بلا شبہ ہم تب تو پڑ جائیں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں. کیا نازل کی گئی ہے وہی اسی پر ہم میں سے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بڑا ہی جھوٹا ہے اور شیخی مارنے والا. معلوم ہو جائے گا ان کو کل ہی کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور شیخی مارنے والا. بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی آزمائش کے لیے ان کی، تو انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، اور آگاہ کر دو ان کو کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان میں، ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہوگا. تو پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، تو اس نے ان کو پکڑ لیا پھر اس کو مار ڈالا. آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر چنگاڑ، ایک تو وہ ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر کنکر برسانے والی ہوا سوائے آل لوط کے. بچا لیا ہم نے ان کو رات کے پچھلے پہر میں، فضل خاص ہماری اپنی طرف سے، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ان کو جو شکر ادا کرنے والے ہیں. اور آیت نمبر 36، اور یقیناً ڈرایا تھا لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے، مگر انہوں نے شک کیا ڈرانے سے، اور یقیناً انہوں نے لینا چاہا اس سے اس کے مہمانوں کو، تو مٹا ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں. سو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا. اور یقیناً نازل ہوا ان پر صبح سویرے ہی عذاب ٹھہر جانے والا، تو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کو. اور بے شک آسان کر دیا ہم نے تم پر قرآن نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، جھٹلایا انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو جیسے پکڑنا تھا کسی قوی غالب کا. اور آیت نمبر 43، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے صحیفوں میں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں بڑی مضبوط، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت اور بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر. بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور وہ گھڑی ہوگی بڑی سخت اور بڑی تلخ ہوگی. بے شک مجرم ہے گمراہی میں اور دیوانگی میں، جس روز یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہ کے بل، کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جہنم کی لپیٹ کا. اور بے شک ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے اندازے کے مطابق، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات ہوتی ہے جھپکنے کی طرح سے آنکھ کے. اور بے شک ہم ہلاک کر چکے تم جیسے گروہوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا. اور ہر عمل جو انہوں نے کیا اعمال ناموں میں ہے، اور ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام لکھ لیا گیا ہے. بے شک متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں کے. آیت نمبر 55 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ وہ مقام میں ہوں گے سچائی کے، نزدیک اس بادشاہ کے جو صاحب اقتدار ہے. الحمدللہ. اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن تعلیم فرمائی اس نے قرآن کی. خلق الانسان اور اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان اور اس نے سکھایا اس کو بولنا. سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے. اور آیت نمبر 6 اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور آسمان کو بلند کیا اس نے اور قائم کر دیا میزان عدل، تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ، اور مت کم کرو تولتے وقت. اور زمین بچھائی اس نے خلقت کے لیے، اس میں میوے
मेवे हैं, खजूरों के दरख्त हैं जिनके खोशे पर गुलाफ होते हैं, और अनाज भूसे वाले और खुशबूदार फूल। और कौन कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे? पैदा किया उसने इंसान को ठीकरी की तरह खनखनाती मिट्टी से, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। तो फिर ए इंसान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा? रब दोनों मशरकों और रब दोनों मगरबों का, तो तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएगा? रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावज, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे, तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे? और उसी के लिए है जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में और पहाड़ों में, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और जो कुछ भी है इस जमीन में सब कुछ फना होना है, और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और आयत नंबर 29, मांगता है उससे जो कोई है आसमान में और जो कोई है जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अनकरीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बोझल जमातों जिन्नों और इंसानों की, तो फिर तुम कौन कौन सी अपनी रब की नेमतों को झुटलाओगे? और ए गुरो जिन्नों और इंसानों के, अगर तुम्हें कुदरत हो कि निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और जमीन के, तो निकल जाओ। नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के, तो कौन सी नेमत को तुम अपने रब की झुटलाओगे? छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, और फिर ना कर सकोगे तुम इनका मुकाबला, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तिलझट की तरह। और आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। इसका जवाब इससे अगली आया में आएगा। तो कौन कौन सी नेमतों की तुम अपने रब की झुटला सकते हो? पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, और फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बाल और पांव से, और कौन सी नेमतें अपनी रब की तुम झुटलाओगे? और आयत नंबर 43, यही है वो जहन्नम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग, घूमते फिरेंगे वो दरमियान में इस दोजख के और खोलते हुए गर्म पानी के, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? और आयत नंबर 46 बहुत खूबसूरत आया है, और जो डरा खड़ा होने से अपने रब के सामने, तो उसके लिए दो जन्नतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खशियत इलाही दे दे। मैंने इस बारे के शुरू में बताया था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे नमाज पढ़ो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खशियत अता कर दे, आमीन सुमामी। तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे, तो फिर कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इनमें से हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो फिर कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? तकिया लगाए हुए होंगे इसके बिछौनों पर जिनके अस्तर रेशम के होंगे, वह फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? होंगी इनमें शर्मीली आंखों वालियां, और ना छुआ होगा उनको इंसानों ने इनसे पहले और ना ही किसी जिन ने, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? गोया कि वो है यकूत और मरजान, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं है जजा उम्दा नेकी की मगर ये कि बदला है आला दर्जे का, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? दोनों गहरी सबज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इन दोनों में है दो चश्मे उबलते हुए, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इन दोनों में है फल और खजूरे और अनार, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? वो हूरे जो महफूज है खैमों में, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने इससे पहले और ना ही किसी जिन ने, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब की झुटलाओगे? तकिया
तकिया लगाए हुए होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस, तो कौन सी नेमतों को तुम अपने रब के झुटलाओगे। और आया नंबर 78 जो सूरह की आखिरी आया है, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, के बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अज़मत है और एहसान करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब वाक़िया होगी वाक़िया होने वाली, नहीं उसके वाक़िया होने में कुछ छूट, किसी को पस्त करने वाली और किसी को बुलंद करने वाली। जब लरसने लगे जमीन बुनचाल से और रेजा रेजा कर दिए जाएंगे पहाड़ पूरी तरह, तो हो जाए वो गुबार बिखरे हुए और हो जाओगे तुम ग्रोह तीन किस्म के। तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाएं हाथ वालों का, और बाएं हाथ वाले क्या ही अफसोस बाएं हाथ वालों पर। और सबकत ले जाने वाले तो हैं सबकत ले जाने वाले, यही लोग हैं मुकर्रबीन। नेमत की बहिश्तों में बहुत से होंगे पहले लोगों में से और थोड़े से बाद के लोगों में से, मसनदों पर जो आरास्ता हैं, तकिया लगाए हुए उन पर आमने सामने लिए फिरेंगे उनके पास नौजवान जो हमेशा एक ही हालत में होंगे, आबखोरे और आफताबे और जाम साफ निथरी हुई शराब के। और आयत नंबर 19, ना सर चकराए उनका इससे और ना जायल होंगी उनकी अकलें, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद होंगे। और आयत नंबर 21, और गोश्त परिंदों के जिसकी हो उन्हें रगबत, और हूरे बड़ी बड़ी आंखों वाली जैसे आबदार मोती हिफाजत से रखे हुए। अमाल का बदला होगा उसका जो वो करते रहे। सुभान अल्लाह। देखिए जो अमल इस दुनिया में करते रहेंगे उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कितना खूबसूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सुनेंगे वो वहां कोई बेहुदा कलाम, और ना ही गुनाह के बाद सवाए कलाम उनका होगा सलाम सलाम। और दाएं हाथ वाले क्या कहने दाएं हाथ वालों के, बाग हैं जिनमें बेरियां बेकांटों की, और केले तहबत है और साए लंबे लंबे, और पानी हर दम रवा, और मेरी बकसरत ना खत्म होने वाले और ना उन पर कोई रोक टोक होगी। और फर्श ऊंचे ऊंचे, बेशक उठाया हमने उन हूरों को नए तौर पर, तो बनाया हमने उनको कवारियां शोहरों की प्यारियां और हम उमर दाएं हाथ वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारा नामा माल हमारे दाएं हाथ में हो। आमीन सुम आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं वो लोग जिनका नामा माल बाएं हाथ में होगा, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और बाएं हाथ वाले क्या ही अफसोस है बाएं हाथ वालों पर, दोजख की लपेट में और खौलते हुए पानी में और साए में स्याह धुएं के, ना ठंडा होगा और ना आरामदेह। बेशक ये लोग थे इससे पहले ऐश में पड़े हुए और मगन। गौर करें कि ये वो लोग थे जो दुनिया में ऐश और आराम की जिंदगी गुजारे थे और इसरार किया करते थे बड़े बड़े गुनाहों पर। वो कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियां तो क्या फिर उठाए जाएंगे, और क्या बाप दादा को हमारे अगले लोगों में से कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले। और आयत नंबर 50, फिर जरूर जमा किए जाएंगे एक वक्त पर जो मुकर्रर है, फिर यकीनन तुम ए वो जो गुमराह हो झुटलाने वाले हो, जरूर खाओगे तुम इस दरख्त से जो ज़कूम है, फिर भरोगे इससे अपना पेट, फिर पियोगे इस पर खौलता हुआ पानी, फिर पियोगे जैसे पीते हैं प्यासे ऊंट। ये होगी मेहमानी उनकी इंसाफ के दिन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि हमने ही पैदा किया तुमको, तो क्यों नहीं सच समझते। भला फिर देखो तो ये जो नुतफा तुम डालते हो, क्या तुम पैदा करते हो इसको या हमने पैदा किया इसको। हमने मुकर्रर कर दिया तुम्हारे दरमियान मौत को और नहीं है हम इससे आजिज। और आयत नंबर 61, और इस पर के बदल डालें तुम्हारी तरह के और पैदा कर दे तुमको ऐसे में जिसको नहीं तुम जानते हो, और यकीनन तुम जानते हो पहली पैदाइश को, तो क्यों नहीं तुम सोचते। और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उगाते हो खेती इससे या फिर हम उगाते हैं। अगर हम चाहें तो कर दे इसे चूरा चूरा, सो रह जो तुम बातें बनाने वाले। हम तो तावान में ही फंस गए, बल्कि हम बदनसीब
करीब रह गए हैं, भला फिर देखो तो पानी जो तुम पीते हो, क्या तुमने इसको नाजिल किया है बादल से या हमने नाजिल किया है? अगर हम चाहें तो कर दे इसे खारी, फिर क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते? फिर भला देखो तो वो आग जो तुम सुलगाते हो, क्या तुमने पैदा किया इस पे दरख्त को या फिर हमने पैदा किया? और आयत नंबर 73, और हमने बनाया इसे याद दहानी का जरिया और बरतने को मुसाफिरों के लिए, तो तस्बीह करो तुम नाम की अपने रब के जो अजीम है। तो नहीं कसम खाता हूं मैं तारों की मंजिलों की, और यकीनन कसम है ये कि अगर तुम समझो तो बड़ी बात है। यकीनन जो कुरान है बड़े रुतबे वाला, जो किताब है लौह महफूज में और पोशीदा है, नहीं हाथ लगाते इसको मगर जो पाक है, और उतारा गया है ये रब्बल आलमीन की तरफ से। तो क्या फिर इस कलाम के साथ तुम सुस्ती करते हो और बनाते हो तुम अपना हिस्सा ये कि तुम झुटलाते रहते हो? तो सो क्यों नहीं जब आप पहुंची जान गले तक और तुम इस वक्त की हालत में देखा करते हो। आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब इंसान पे मौत का वक्त आता है तो उस वक्त हम ज्यादा नजदीक होते हैं उसके तुमसे भी, लेकिन नहीं तुमको नजर आते। बस क्यों नहीं, अगर हो तुम खुद मुख्तार तो लौटा लो उसे अगर तुम हो सच्चे। सो अगर वो हुआ मुकरबों में से तो उसके लिए है राहत और रिस्क और जन्नत की नेमतें, और अलबत्ता अगर वो हुआ दाएं हाथ वालों में से तो सलाम तुझ पर दाएं हाथ वालों में से, और अलबत्ता अगर वो हुआ जुटलाने वालों गुमराह लोगों में से तो जियाफत होगी उसके लिए खौलते हुए पानी की। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और दाखिल किया जाएगा जहन्नम में, बेशक यही है वो वाकई यकीनी बात। और अब इस सूरह की आखिरी आया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, तो तस्बीह कर नाम की अपने रब की जो अजीम है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, तस्बीह की है अल्लाह की उसने जो है आसमान में और जमीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। उसी की है बादशाही आसमान और जमीन में, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही पोशीदा है, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। वही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर। वो जानता है जो कुछ दाखिल होती है जमीन में, और वो जानता है जो कुछ निकलती है जमीन में से, और जो उतरती है आसमान से, और जो चढ़ती है इसमें, और वो तुम्हारे साथ होता है जहां कहीं तुम होते हो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देख रहा है, और उसी की है बादशाही आसमान और जमीन की, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम के तमाम मामलात। वही दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और वो वाकिफ है इससे जो तुम्हारे दिलों में है। ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और खर्च करो इसमें से, बनाया उसने तुमको जानशीन जिसका। बस जो लोग ईमान लाए तुम में से और खर्च करते रहे उसके रास्ते में, सवाब है उनके लिए बहुत बड़ा। और क्या हुआ तुमको कि नहीं लाते ईमान अल्लाह पर, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि ईमान लाओ अपने रब पर, और बेशक वो ले चुका है तुमसे अगर तुम हो ईमान वाले। वही तो है जो नाजिल फरमाता है अपने बंदे पर वाज़े आयात, ताकि निकाल ले तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। वो बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और निहायत मेहरबान है। और क्या हुआ है तुमको कि नहीं खर्च करते अल्लाह के रास्ते में, हालांकि अल्लाह ही की विरासत है आसमान और जमीन में। नहीं बराबर तुमने जिसने खर्च किया फतह मक्का से पहले और जंग की, और ये लोग कहीं बढ़कर हैं दर्जे में उन लोगों से जिन्होंने खर्च किया बाद में और जंग की, और सभी से वादा किया अल्लाह ने भलाई का, और अल्लाह इससे जो कुछ तुम करते हो खबर रखता है। और आयत नंबर 11 बहुत खूबसूरत आया है कि कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को कर्जे हंसना तो वो कई गुना अता करे उसको, और उसके लिए है बेहतरीन अजर। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को कि दौड़ रहा होगा उनका नूर उनके आगे और उनकी दाईं तरफ,
उनसे कहा जाएगा कि बिशारत है तुमको, जन्नतों की बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, और हमेशा हमेशा तुम उनमें रहोगे, यही है कामयाबी और जो बहुत बड़ी कामयाबी है। उस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान से, देखो हमारी तरफ के हासिल करे रोशनी हम तुम्हारे नूर की। कहा जाएगा कि लौट जाओ पीछे की तरफ, फिर हायल कर दी जाएगी उनके दरमियान एक दीवार जिसमें होगा एक दरवाजा, जो इसकी जानब अंदरूनी है इसमें तो रहमत है, और जो इसके बैरूनी जानब दरवाजा है उसमें अजाब है। देखिए क़यामत के दिन पुल सराज जो है ना वो दोज़ख के ऊपर होगा और बिल्कुल वहां पे अंधेरा होगा, और उस दिन रोशनी जो होगी वो हमारे अमाल की होगी। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों के अमाल तो इतने खूबसूरत होंगे कि दूर दूर तक रोशनी होगी, और कुछ लोगों के अमाल ऐसे होंगे कि बिल्कुल जैसे पांव के नाखून के आगे एक छोटा सा नूर होता है वो भी खैर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास कोई नूर नहीं होगा, और वो अपने लोगों से कहेंगे कि थोड़ी देर ठहरो हमें अपने साथ ले जाओ, और वो उनको कहेंगे कि पीछे हट जाओ, जाके अपना नूर खुद ही तलाश करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि आज जो हम अमल कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको नूर बना के पुलसरात पे हमें रोशनी अता करना, आमीन सुम आमीन। पुकारेंगे वो उन मोमिनों को कि क्या नहीं थे हम तुम्हारे साथ, वो कहेंगे कि हाँ, लेकिन तुमने फितने में डाला खुद को और मुंतजिर रहे और शुबा किया और धोखे में डाले रखा तुमको आरज़ुओं ने, यहाँ तक कि आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म, और फरेब देता रहा तुमको अल्लाह के बारे में शैतान, बड़ा फरेब देना। तो आज नहीं लिया जाएगा तुमसे मुआवजा और ना उनसे जिन्होंने कुफर किया। तुम सब का ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारा रफीक है और वो बड़ी बुरी जगह है। क्या नहीं आया वक्त अभी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए के नर्म हो उनके दिल अल्लाह की याद के लिए, और जो नाजिल हुआ है हक की तरफ से, और ना हो जाए वो इन लोगों की तरह जिनको दी गई थी किताब पहले, फिर गुजर गया उन पर तवील अरसा तो सख्त हो गए उनके दिल, और अक्सर उन लोगों में से नाफरमान है। जान रखो कि अल्लाह जिंदा करता है जमीन को उसके मरने के बाद। बेशक बयान कर दिए हैं खोल कर हमने तुम पर आयात ताकि तुम अकल से काम लो। बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को कर्ज हसना, कई गुना अदा करेगा अल्लाह उनको, और उनके लिए बेहतरीन अजर है। और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उनके रसूल पर, ये लोग ही हैं सदीक और शहीद अपने रब के नजदीक, उनके लिए इसका अजर है और उनका नूर है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, झुटलाया हमारी आयात को, वही अहले दोज़ख है। जान रखो दर हकीकत दुनिया की जिंदगी है खेल और तमाशा और जीनत और तफाखुर तुम्हारे आपस में, और एक दूसरे से ज्यादा की तलब अम्वाल में और औलाद में। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बारिश की अच्छी लगती है किसान को इससे उगने वाली खेती, फिर वो जोर पर आती है तो देखते हो तुम कि जर्द हो गई, फिर हो जाती है भुस, और आखिर में शदीद अजाब है। और मगफरत है अल्लाह की तरफ से और खुशनुदी है, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर समान धोखे का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लब को मगफरत की तरफ अपने रब की, और जन्नत के वुसअत है जिसकी वुसअत की मानद आसमान और जमीन, और तैयार की गई है उनके लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये फजल है अल्लाह का, वो अता फरमाता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और आयत नंबर 22 कि नहीं पड़ती कोई मुसीबत जमीन में और ना तुम्हारी जानों पर मगर लिखी हुई है किताब में बेशतर इसके कि हम इसको पैदा करें, बिलाशुबा ये अल्लाह के लिए आसान है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ का हथियार हमारे हाथ में दिया हुआ है कि हम दुआ ऐसी है कि जो तकदीर को भी बदल देती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे, ताकि ना कम करो उस पर जो ना हासिल हो सका तुम्हें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो ये था ना कि अभी गजवात हो रहे थे, अभी मुसलमान अगर कोई ऐसे स्ट्रेटेजीज बना रहे थे या कुछ भी है तो वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, तो उनके अंदर घुस के फिर वो बातें जो है वो दूसरे अपने लोगों को जाके बता देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुम दिली दोस्त नहीं बनाओ। और आजकल के जमाने में आप देखिए कि हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कह रहे हैं, और आगे आपको इसकी पूरी डिटेल आएगी कि वजह क्या है कहने की। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया, कि वो लोग जो काफिरों को दोस्त बना लेते मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों को छोड़ के। क्यों बनाते हैं दोस्त? अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी रीजन क्या बता रहे हैं कि इस वजह से उनको दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना,
کیا تم یہ چاہتے ہو عندہم العزت کہ ان کے پاس بڑی عزتیں ہیں؟ تم کہتے ہو کہ وہ بڑے پیسے والے، وہ تو اتنے بڑا ان کا مقام، اور کہاں وہ لوگ ہیں، اور اگر ہم ان سے دوستی کریں گے تو کل کو ہمیں فائدے ملیں گے، اور اگر ہم ان کی پارٹیز میں ہوں گے تو واٹس ایپ پہ آ جائیں گی تصویریں، اور پھر اس کے بعد فیس بک میں تصویریں آ جائیں گی، اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ہم تو ایسے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یو کین ریلیٹ ود دیز تھنگس، کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہوتا ہے، اس میں سے بیسٹ پکچرز نکال کے آپ اس کو فیس بک میں لگا دیتے۔ ابھی تو وہ لوگ جو ذرا جن کے گھر میں تھوڑا سا غم ہے، پریشانیاں ہیں یا کچھ ہے، ان کو دیکھ کے پھر ہمیں رونا کیا آتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ اب اچھے بھلے تھے تو اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اب دیکھو میرا بچہ ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا اب یہ ہو گیا۔ تو نظر تو برحق ہے نا، نظر لگتی ہے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہم جان بوجھ کے جو اتنی سی چیز ہوتی ہے نا اس کو اتنا بڑا بڑا کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو، رج کے نظر لگائیں تاکہ، اور پھر اس کے بعد رونے نہیں ختم ہوں گے ہمارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یا رب العالمین آپ جو کچھ ہمیں ان آیات میں سکھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے عمل میں ڈھال دیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا نارم کر لیا نا ان چیزوں کو کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ہم اس لیے تو نہیں پکچرز ڈالتے نا، یہ تو میری اپنی خوشی کے لیے، میں تھوڑی شو آف کے لیے ڈالتی ہوں، میں تھوڑی اس لیے ڈالتی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اپنے دل سے پوچھیں، ایسے معاملے اپنے دل سے پوچھا کریں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، اور پھر ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، پھر ہم ساروں کے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں، اچھا اس نے اس کی پکچر، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کے دوست کی دوست کی پکچر، دوست کی دوست کی پکچرز دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھی رہی ہوں فیس بک میں، اور پھر بندہ اپنے آپ کو ہٹاتا ہے وہاں سے کہ میں نے کسی طرح سے ہٹوں یہاں سے۔ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ان کے پاس عزتیں چاہتے ہو، تمہارے ساتھ ان کا نام آ جائے، تم ان کے ساتھ ان کے گھروں کی پارٹیز میں چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ کوئی رشتے بنا لو، تم ان کے ساتھ کوئی ایسا بتا دو، ہاں میں ان کو جانتی ہوں، میں وہ بندہ آپ کو جانے نہ جانے، لیکن کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، کبھی کسی غلطی سے کسی پارٹی میں کبھی تصویر ہی اتر گئی ہو، پھر آپ وہ بھی ان کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، دیکھو میں اس بندے کو جانتی ہوں، یہ میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزتیں تو ساری کی ساری رب کے پاس ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ساری دنیا کو تمہارے آگے لے آئیں گے۔ تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا، اللہ کو ناراض کر کے، اس کی باتوں سے انکار کر کے، دوسروں کو خوش کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عزتیں نہیں دیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 140، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ وقد، اور یقیناً تحقیق، نزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتابی اس کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفروا، کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تم اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے، ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔
आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मैं लफ्ज नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही से आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि जी हमने तो दोज़ख में तो इतने वैसे वाले लोग होंगे, वहां तो बड़ा फन होगा, जन्नत में सारे मौलवियों ने होना है, उधर तो इतनी बोरियत होगी, हम उधर ही ठीक है। मजाक जैसे उड़ाते हैं और हम सुनते हैं ऐसी बातें। और कभी कुरान की अगर कभी डिस्कशन होती है, जब हम पार्टीज में होते हैं, यूजुअली डिनर्स पे होते हैं, तो और कोई बात नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि कभी कोई इस्लाम की बात होगी और फिर जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, नहीं कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब छोड़ो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे थोड़ी हर एक को पकड़ना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कब बस यही कहते रहेंगे, कोई नहीं मुसलमानों ने सबने जन्नत में चले जाना, ऐसे ही नहीं डराओ, दुनिया में भी तो अब रहना ना, दुनिया क्यों बनाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब इसमें भी रह के सारा कुछ करना ही है ना। अगर देखिए कि ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रही हूं कि हम रिलेट कर सकते हैं कि उन जगहों पे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहाँ पे, अब कितनी दफा आपने ये भी सुना, नहीं हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं कुरान में, अल्लाह ने वो तो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, वो हुक्म आम बंदों के लिए तो है ही नहीं है, किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है। अब क्योंकि बहस करने वाला उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे करे उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वहां पे बहस कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि हत्ता यहाँ तक के यहूदू फी हदीसिन गैरिही, यहां तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ, वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं, अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं फैमिली में, कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना वो हमारी चॉइस की होती हैं, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना, जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहां पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन, और फिर वहां पे अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन कि देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं मैं थोड़ी बात कर रही हूं, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम मुझसे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक, कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार है, माँ बाप है, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नमा जमिया, कि सब के सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में है वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और अब देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे? मुनाफिक बैठे रहेंगे।
वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो फनी नहीं होता इसलिए इसको पार्टीज में ना बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाएं कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नासूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है, और वो जाने के जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पर वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे? दर्द में फेंक देंगे। दर्द एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं? इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, कहीं ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए, फतहुन, कोई फतह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू, कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे? तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है? कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट वेट करते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है कि कहाँ पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन, और बेशक, काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफरों के लिए नसीबन, कोई हिस्सा, कालू, कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, तो अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़यामती, क़यामत के दिन। अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पे भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह, लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में काफरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे। ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो एज अ मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या कहते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम,
कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। और किसके खातिर दे रहे हैं? आखिरत की खातिर दे रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में सब मोमिन और काफिरों को अलहदा कर देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, कि अल्लाह को धोखा देते हैं, वह हुवा खादिउहुम, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उनको धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू, और जब वो खड़े होते हैं, इला सलाती। अब ये देखिए बहुत डरने वाली और बहुत सोचने वाली आयत है कि मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह कहते हैं, पहले क्या बात कही थी कि वो धोखा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अल्लाह उनको धोखा दे रहे। और वो करते क्या हैं? अब अपने दिल पे ये आयत लिखिए कि वइज़ा कामू इला सलाती, कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो वो इंतहाई सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिक है ना, उनके बारे में जरा अपनी नमाजें अब हम चेक करें। अपने दिल से पूछिए कि कब हमने नमाज को इतने शौक, इतने ज़ौक़ और शौक से पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमने असर की नमाज पढ़ी तो हमारे अंदर फिर इंतज़ार कि कब मगरिब की नमाज हो, अजान होगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये सोचने की बात है। हम तो क्या कहते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी, अब तो खाना पकाने का टाइम है, अच्छा 2 मिनट रह गए, जल्दी 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 जाके नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ये ड्रामे का वक्त आ रहा है, 1 घंटे का ड्रामा है, और लेकिन हमने वो 5 मिनट की जो नमाज पढ़नी होती है ना, तो हमें होता है कि अच्छा जो ब्रेक बीच में आता है ना, कई दफा तो ऐसे होता है कि उसमें भागम दौड़ नमाज पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा नमाज का, क्योंकि वो 1 घंटे के दरमियान में नमाज का वक्त गुजर जाना होता है, तो उसमें ही नमाज पढ़नी है ना, तो फिर वो जो ब्रेक का वक्त आता है उसके अंदर हम भागम दौड़ फर्ज अपने पूरे कर रहे होते हैं। ये किसकी बीमारी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो कैसे खड़े होते हैं? सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। यराउना, और वो दिखावा करते हैं नासा, लोगों को। कैसे दिखावा करते हैं? आप जरा गौर कीजिए कि जब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं फिर आपको एक दफा यहाँ पे ये बात कह दूं कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। मैं एक आम बात कर रही हूँ कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर यूजुअली पाकिस्तान में तो मस्जिद में नहीं औरतें जाती हैं, अमेरिका में हम लोग यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं। जैसे यूजुअली किसी की डेथ होती है तो कुल करना होता है तो वो मस्जिद में कर देते हैं कि सारे लोग वहां पे आ जाए। तो कई दफा ऐसा होता है लोगों ने जिन्होंने कभी भी नमाज नहीं फॉर एग्जाम्पल पढ़ी हो, सदियों में कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, लेकिन वहां पे उनको ये होता है कि अब तो मस्जिद में आए हैं और जमात भी हो रही है, सारे नमाज पढ़े, शर्मो शर्मी खड़े हो जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों को ये ना लगे कि मुसलमानों ने नमाज नहीं पढ़ी है, तो वो खड़े हो जाते हैं। यराओ ना, वो दिखावा कहते हैं नासा लोगों को। अब देखिए जब हम शादियों पे जाते हैं तो क्या होता है कि ऐन मगरिब के टाइम पे खाना खोल देते हैं, बजाय इसके कि वहां पे ये अनाउंसमेंट ही कर दें कि जी मगरिब का वक्त हो गया है, जमात खड़ी है, आप लोग नमाज पढ़ लें। आप खुद गौर कीजिएगा कि होता है बहुत जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आप ज्यादातर देखिएगा कि डिनर पे जब हम जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, या कोई भी रात का जो जिस वक्त नमाज का वक्त होता है, तो क्या होता है अब खाना खोल देते हैं, अनाउंस होता है, फिर लोग पागलों की तरह खाने की तरफ दौड़े होते हैं कि लाइन कहीं लंबी ना हो जाए और हमें खाना बाद में, नमाज तो देखी जाएगी बाद में भी पढ़ लेंगे। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हो कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे थे आयत नंबर 142 सूरत अन-निसा। अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब तीसरी बात क्या बता रहे हैं कि वला यज़कुरूना, और नहीं वो याद करते अल्लाह को इल्ला कलीला, मगर बहुत ही थोड़ा। कलीला थोड़ा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में और कितनी जगह पे ये बात आई है कि वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलुम मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं जो शुक्र गुजार हैं, शुक्र ही नहीं अल्लाह का अदा करते।
अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिक, अब वो तज़ब्ज़ब में है, बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई, न तरफ उन लोगों के, वला इलाहा उलाई, और ना ही उन दूसरी तरफ के लोगों की तरफ, कभी उधर लटक जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। अब देखिए कि वो लोग जो कश्ती के बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं ना, वो जरा भी कश्ती हिचकोले खाएगी तो डर होता है ना कि उलट के पानी के अंदर ही ना गिर जाए, लेकिन जो लोग दरमियान में बैठे होते हैं बड़े सुकून से बैठे होते हैं, कश्ती हिचकोले भी खा रही है तो चैन से महफूज है उधर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि ऐ लोगो उदखुलुल इस्लाम काफ़तन, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्यों डरते हो? आपको क्या लगता है कि इस्लाम में अगर पूरे के पूरे दाखिल हो गए तो जिंदगी क्या मुश्किल हो जाएगी? क्या फिर हम लोगों में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा? मेरी जिंदगी से क्या फन ही खत्म हो जाएगा? देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो हलाल चीजें हैं ना, सारी चीजें हलाल है। कुछ चीजें, कुछ गिनती की, आप हाथ से गिन सकते हैं, कुछ गिनती की चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की हैं, जो गुनाह कबीरा में आ जाती हैं, जो हलाल हराम में आ जाती हैं, वो चीजें जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाकी तो सारी चीजें हलाल हैं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ बिकने की जरूरत है। अल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि या रब्बुल आलमीन, मैं सारी की सारी आपकी, मैं समेना व अताना करने वाली होगी। लेकिन एक दफा पता है, जब जुबान से निकालते हैं ना, तो ये हमारा दिमाग जो होता है ये बड़ा तेज होता है, ये बड़ा चालाक है, फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। मुंह से आवाज निकलती है, ये पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देता है, और फिर हम उसके मुताबिक अमल करना शुरू हो जाते हैं, और आसानियां कर देता है फिर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी कर देंगे ना, जिसके लिए हम बिकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम समेना व अताना करने वाले हो गए, आप हुक्म कीजिए। हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कैसे हमें संभालते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमन युद्लिल्लाहु, और जो कोई जिसे भटका दे अल्लाह, फलन ताजिद लहू सबीला, तो वो हरगिज़ कोई रास्ता नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए ये वही आयत है, वैसी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर वो फिर बढ़ जाता है उसी गुनाहों में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हदायत नहीं देंगे। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो कभी इधर लटक रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, जहां फायदा देखते हैं वहां चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसी जैसे कहते हैं ना, वो चूहिया की तरह बिल के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ उसने एक सुराख रखा होता है कि इधर से घुसती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। वही हाल करते हैं कि जहां से उनको डर रहता है दूसरी तरफ निकल के फायदे वाली जगह पे चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए फिर हमारी पुकार है, ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं? बिल्कुल एक माँ की आवाज अपने कान में लाइए कि जब नाम लेके माँ पुकारती है ना इतने प्यार से कि बेटी मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, ऐसा ना करना, ऐसी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उन लोगों ने की थी, उनको बड़ा नुकसान हुआ था, अब तुम ऐसी चीज ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजुल काफिरीना, कि मत बनाना काफिरों को औलिया, अपने दिली दोस्त ना बनाना काफिरों को, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। मोमिनों को तो साथ नहीं देते हो। देखिए मोमिनों के साथ देने से, देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आए और आके ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सोचें कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। यूजुअली होता है कि मैं तो नहीं ये कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनविटेशन आता है किसी ऐसे बड़े इंसान का कि जिसके जो काफिरीन में फॉर एग्जाम्पल है, और ऐसे लोगों के इन्विटेशन आता है, भागे जाते हैं, इसलिए कि वहां पे तो तस्वीरें खींचेंगी तो फिर हमारी अखबार में भी आ जाएंगी और फिर हमारी टीवी पे भी आ जाएंगी, और अगर चले उस लेवल पे नहीं आएंगी तो व्हाट्सएप पे तो चलो मैं ही खींच के भेज दूंगी, अगर वो तो सबसे छोटा मीडियम है ना, लेकिन फिर हमारे फेसबुक में आ जाएंगी, ट्विटर पे आ जाएंगी, इधर उधर हर जगह पे आ जाएंगी। आप जरा देखिए तो सही ना, ये सारी की सारी आयात हमारे दिल को टटोलने वाली है। एक होता है ना नफाक को अंदर से खुरच खुरच के खत्म करना, उस तरह वाली आयात है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मुनाफिकीन की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं।
اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے ہمیں باہر نکال دے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت بنانا دوست اولیاء اپنے کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر. آتوریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم سلطانا مبینہ. کیا تم اللہ کو دلیل دینا چاہتے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی ہے یہ دلیل کہ تم نے یہ اللہ کا حکم نہیں مانا, تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیا ہے, تو تمہارے اگینسٹ یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر تم ایسے کرتے ہو تو یہ چیز ہی کافی ہے تمہیں سزا دینے کے لیے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین بے شک منافق جو ہیں وہ لوگ فی درک الاسفلی کے درجے میں ہوں گے, سب سے نچلے درجے میں, من النار آگ کے. اللہ اکبر. اور دیکھیے درک کون سا درجہ ہوتا ہے کہ دوزخ کا وہ مقام ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے, اتنا برا درجہ ہے. دیکھیں باقی دیکھیں جو کافر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو بھی گناہ کرنے والے ادھر ادھر سب لوگوں کا پوری لسٹ اپنے دماغ میں رکھیے, اور پھر دیکھیے کہ وہ لوگوں سے بھی بڑا درجہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری درجے میں جو درک ہے نا جسے دوزخ پناہ مانگتی ہے اس میں منافقین جائیں گے. تو پھر ان کی جو بیماری ہے اسے ہم جان کیسے نہ چھڑائیں, ہم کیسے نہ یہ دیکھیں کہ اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا ہے, اور ہم مسلمان ہو کے ہم کہیں وہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فی درک الاسفل من النار کہ سب سے نیچے درجے میں ہوں گے آگ کے. ولن تجدا اور وہ ہرگز نہیں آ پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. دیکھیے یہ توبہ کتنی خوبصورت چیز ہے, یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں نا دنیا میں, لیکن جو توبہ جتنا بڑا اللہ کا انعام کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو برا نہ کہو, اس کا اگر آپ عمل بھی دیکھ رہے ہو فار ایگزامپل تو اس کو آپ برا نہ کہو, اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے توبہ کر لی, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی, اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے, اور اس کو ہم برا کہیں گے تو پھر ہم کتنے بڑے گناہ گار ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر یہ سارا کچھ اگر کرنے کے باوجود بھی اگر وہ کوئی انسان جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے وَأَصْلَحُ. دیکھیں توبہ یہ نہیں ہے کہ منہ سے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ او I'm sorry یہ میں نے کیا کیا اب نہیں کروں گی اور پھر اگلے دن پھر ویسی زندگی ہے, نہیں. وَأَصْلَحُ اور اب اس نے اپنی اصلاح کر لی, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اس نے مضبوطی سے تھام لیا کس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ کو کیسے تھامیں گے, وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھا تھا نا ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھیے اللہ کی رسی کون سی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی رسی ہے, اور اس کا سرا جو دوسرا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیے کہاں ہم انسان اور کہاں میرا رب. اللہ اکبر کہ اللہ کی رسی ہم مضبوطی سے تھام لیں, دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے, وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا. اس قرآن کو اپنی زندگی میں کھولنا پڑے گا سب کو, اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے, اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کے لیے جیسے میرے رب نے کہا ہے. کیونکہ سودا تو دیکھیں نا آخرت کا ہے. اس دنیا میں اگر ہم اپنی طرح سے دیکھیں نیک جو ہے نا نیکی وہ تو کافر بھی کرتا ہے, نیک تو منافق بھی نیکیاں کر جاتا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی اگر آپ دیکھیں تو میں اکثر ایک سینٹنس پڑھا تھا کہ جو ایسی عورتیں جو کوٹھے پہ رات کو کام کر رہی ہو دھندا کر رہی ہوتی ہیں, جیسے کہتے ہیں اللہ معاف کرے ایسے ورڈز بھی بولنے سے ڈر لگتا ہے, وہ بھی نیکی کر لیتی ہیں. نیکی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن سے کیا مانگتے ہیں, مسلمان سے کیا ریکوائرمنٹ ہے. ہم کیسے ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ نے کیا کہا کہ ابھی تو تم منہ سے اپنے مسلمان, ابھی تو تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے نا,
तुमने कहा अभी तो तुम ईमान तो लाए ही नहीं हो। ईमान लाने के लिए हमें ये कुरान पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप ही हमारी मदद कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसको मजबूती से थाम लो, बिल्लाहि व अखलसू, और खालिस हो जो दीनहुम, अपने दिन में। हम तो दुनिया में एक छोटी सी चीज भी लेते हैं, एक दूध भी लेते हैं ना, तो हमें वो भी खालिस चाहिए होता है। अगर हमें पता हो कि ये दूध में मिलावट है, हम उस जो दूध देने वाला आता है उसकी जान खा लेंगे। हम तो सोना भी लेते हैं तो हमें खालिस चाहिए, राइट। कोई चीज दुनिया में आप देख ले, दालें लेते हैं, चावल लेते हैं, हमें ये होता है कि इसमें कंकर नहीं हो, इसमें ऐसे नहीं हो, खालिस चाहते हैं ना। अपने लिए तो खालिस चीजें चाहे, और अल्लाह को जब अपने माल भेजो तो उसमें मिलावट हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह कैसे कबूल करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ वो अमाल कबूल करेंगे जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होंगे। और खालिस कैसे होंगे? देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें दिखावा नहीं होगा। अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं और वो हम इसलिए भी करें कि हमारी वाह वाह हो जाएगी, उसको भी पता लग जाएगा कि हमने नेक काम किए, जहाँ पे हमें ये पता हो कि लोग देख रहे हो तो हम भाग भाग के काम करें, जहाँ पे हमें ये पता हो कि किसी को पता ही नहीं कि ये मैं काम कर रही हूँ, वहां हम कह के चलो जी ठीक है मैं तो नहीं कर रही हूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते एक नेकी करो तो 70 नेकियों के सवाब। माँ बाप को एक दफा मोहब्बत की नजर से देखो तो हज का सवाब मिल जाएगा। आप किसी का हेल्प, इतनी सी छोटी सी हेल्प कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले तो वो क्या दर्जे आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी, आप देखें कि किसी को आप हेल्प कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख लो, किसी की कोई चीज उठा के उसके हाथ में दे दो, कोई चल रहा है उसको रास्ता बता दो, एक छोटी सी छोटी नेकी आप जरा देखें जो हम पूरी जिंदगी में ऑफ कोर्स हम कर रहे होते हैं, तो अजर तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कैसे देगा। ऐसे तो नहीं फिर हम नूर के मेंबरों पे जाके बैठेंगे ना, जो फेवरेट हमारी बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि इतने मेरे अच्छे बच्चे थे, एक एक घंटा बैठ के हम कुरान की क्लास भी ले रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सुना भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अहद भी फिर कर रहे होते हैं साथ साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये काम नहीं करेंगे, जो मेरे रब को पसंद है वो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जन्नतों में हमें तो भेजते हैं इंशाअल्लाह। आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे से खजूर की अगर आप किसी को देते हो, खाने के लिए देते हो, किसी को भूख में दे देते हो, तो वो ओहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतना उसका अजर मिल जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देने लगे तो वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे ना। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं। अब एक आया इसकी रह गई और वो इतनी खूबसूरत आया है कि जिसको मैं अगले पारे के साथ इसलिए पढ़ूंगी कि वो उसका अभी, क्योंकि टाइम इतना कम है, उसका हक अदा नहीं होगा। और वो आया भी ऐसी है कि अगर उसकी तफसीर ना भी करो ना तो तब भी ऐसा होगा कि मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उसकी तफसीर करने को मेरा दिल चाहता है। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसकी तफसीर करेंगे, हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस बात पे हमें ये कह रहे हैं। अब आप डेफिनेटली जब आपने मुसहफ खोले हैं तो आप अगली आयत तो पढ़ ही लेंगे और आप उसको एंजॉय भी कर लेंगे, लेकिन अब वल्लाही मैं आपको कह रही हूँ कि अगली दफा जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आप इस पे जब हम इसको डेप्थ के साथ समझेंगे और इंशाल्लाह हम अपने अमाल में इसको लेके आएंगे, अपने जवारे पे इसको जाहिर करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।